Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Please subscribe. Dear viewers, today we are going to read about Sir Philip Sidney's contribution to literary criticism. Let's start. First of all, I'm going to tell you that he may be regarded as the first dramatic critic. His seminal work, The Defense of Posey, it was published in two separate editions. One was named Defense of Posey and it was published by the leading Elizabethan publisher William Ponsonby. The other was An Apology for Poetry and it was published by Henry Olney. And this book is a major contribution to literary criticism. We may regard it as the finest work of Elizabethan literary criticism. Sidney's elegant essay suggests that literature is a better teacher than history or philosophy. And Sidney masterfully refutes Plato's infamous decision to ban poets from the state in his Republic. इसके बारे में हम तफसीलन जो है प्लेटो वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. He composed his eloquent defense of imaginative literature against charges of time wasting, prevarication, and allurement to vice. Writing before England's great age of poetry and drama, it was very early for Sidney to include William Shakespeare. So he finds English literature sadly lacking. However, Sidney praises Geoffrey Chaucer for his Troilus and Cresside and his anthology named The Mirror for Magistrates. He also lavishes praise on Edmund Spenser's The Shepherd's Calendar. Although some people think that Sidney's ideas were not original, but still his work did introduce the critical thought of continental Renaissance theorists to England. We can also say that this is a synthesis of critical doctrines of Plato, Aristotle, इनके बारे में तो आप तफसील से पढ़ चुके हैं. Scaliger, ये एक French religious leader था और scholar था, and he is known for expanding the notion of classical history from Greek and ancient Roman history to include Persians, Babylonians, Jewish, and ancient Egyptian history. Minturno, he was also an Italian poet and critic. His influential literary theories were largely Aristotelian. Like Aristotle, he thought that poetry was essentially imitative. And he also said that functions of tragedy or tragic poetry is to delight, to teach, and to move. And a host of other writers and critics कि सिडनी ने जो है इन सारे लिटरेरी थ्योरिस्ट के आइडियाज का एक सिंथेसिस पेश किया है. It brings together Romanticism and classicism. Romanticism और classicism ऐसी दो टर्म्स हैं जो बार बार जो है आपके सामने आएंगी, और इसलिए आपको जहन में रखना होगा कि ये टर्म्स जो हैं किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इनसे क्या मुराद है. अब याद रखें कि रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म क्या हैं कि ये एटीट्यूड्स हैं या इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशंस हैं. जो रोमांटिसिज्म है, इट्स अ रिजेक्शन ऑफ द परसेप्ट्स ऑफ ऑर्डर, काम, हार्मनी, बैलेंस, आइडियलाइजेशन एंड रैशनैलिटी.
and all these typified classicism in general. Romanticism emphasizes the individual, the subjective, the irrational, the imaginative, the personal, the spontaneous, the emotional, the visionary, and the transcendental. Or we can compare both these attitudes, that Romanticism is emotion, while classicism is reason. Romanticism is sense, while classicism is intellect. So, it's a blend of both these elements. It's the first attempt in English to deal with the poetics practically. कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो है फर्स्ट वर्क है एलिज़ाबेथन लिटरेरी क्रिटिसिज्म का. इट वाज प्रोबेबली रिटन इन 1583 बट वाज पब्लिश्ड पोस्टुमसली इन 1595. और ये जो विलियम पॉन्सबी वाला एडिशन था ये पहले शाये हुआ. ऑलनी ने दोबारा शाये किया, मगर फिर फैसला जो है वो पॉन्सनबी के हक में आया, क्योंकि उसने पहले ये किताब पब्लिकेशन के लिए दे दी थी, इसलिए फिर उसकी कापियां भी इसी ने ही फरोख्त की. सिडनी रिप्रेजेंट्स कंटेम्पररी ट्रेंड ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री ऑन द 3 यूनिट्स. कौन कौन से ट्रेजेडी के बारे में बात करता है? कॉमेडी एंड डिक्शन एंड मीटर. डिक्शन आप जानते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, और मीटर क्या है? वो जो शायरी का रिदम है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम इस तरफ आते हैं कि डिफेंस ऑफ पोजी जो है वो लिखी ही क्यों गई. वाई सिडनी जो है चूज टू राइट दिस. तो इसकी वजह ये थी कि इट वाज अ रिप्लाई टू स्टीफन गोसान्स स्कूल ऑफ अब्यूज. स्टीफन गोसान कौन था? ये 1554 में पैदा हुआ और 1624 में इसकी डेथ हो गई. एक एंटी थिएट्रिकल पोलेमिसिस्ट था. पोलेमिसिस्ट उस शख्स को कहते हैं जो कंट्रोवर्शियल डिबेट्स में खुद को एंगेज करता है, और ये चर्च ऑफ इंग्लैंड का क्लर्जी मैन भी था. कि ये भी वैसे प्लेस लिखता रहा, बल्कि फ्रांसिस मीयर्स, जिसका तज़किरा हमने पिछले लेक्चर में भी किया, कि उसने वो जो प्लेडियस टामिया नामी बुक लिखी थी, उसमें उसने कहा था कि इसके प्लेस जो हैं वो अच्छे थे और ये पेस्टोरल प्लेस थे. मगर उसने फिर क्या है कि थिएटर के खिलाफ ये ऐसे लिखा स्कूल ऑफ अब्यूज, बल्कि इसका पूरा उन्वान ये है कि स्कूल ऑफ अब्यूज कंटेनिंग अ प्लेजेंट इन्वेक्टिव अगेंस्ट पोएट्स, पाइपर्स, प्लेयर्स, जेस्टर्स एंड देयर एक्सक्यूजर्स. और ये 1579 में जो है पब्लिश हुआ. तो in this work he described works of literature as works of the devil. उसने कहा कि लिटरेचर प्लेटो की तरह पैक ऑफ लाइज है. He had dedicated his pamphlet to Sir Philip Sidney, कि उसने उसकी इजाज़त के बगैर ही ये उसके नाम किया सिडनी के, तो इसलिए फिर उसे जवाब लिखना पड़ा. He attributed poetry as a moral power whereby poetry encourages the reader to evaluate the virtuous models. तो उसने फिर उसकी जो इल्ज़ामात थे उनको रद्द किया, और सिडनी ने कहा कि लिटरेचर क्या है, वो तो आइडियल ट्रुथ से भी बेहतर है. अपॉलॉजी फॉल्स इनटू 7 ब्रॉड डिवीजन्स, कि अपॉलॉजी को 7 जो है हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है. क्यों? बिकॉज सिडनी हैज यूज्ड सिसरोनियन. सिसरो आप जानते हैं ना, एक रोमन ऑरेटर था, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पहले. ऑफ ओरेटरी टू हिज मेथड ऑफ डेवलपिंग द आर्ग्यूमेंट्स. ओरेटरी आप जानते हैं परसुएसिव स्पीच को कहा जाता है, या परसुएसिव राइटिंग को, कि उसने जो है सिसरो के जो प्रिंसिपल्स थे उन्हीं को फॉलो किया, और अपॉलॉजी को इस तरह से मुरतब किया कि एग्जोडियम होता है इंट्रोडक्शन, कि जिसमें आप अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करते हैं,
और ऑडियंस को कन्विंस करते हैं कि टू आइडेंटिफाई विद यू एंड योर मैसेज। मतलब इसका फोकस क्या है? आपकी क्रेडिबिलिटी, या आप इसे इथोस भी कह सकते हैं। दूसरा था नरेशन और डिस्क्राइबिंग द एंटिक्विटी ऑफ पोइट्री। वैसे नरेशन का मतलब है टू आउटलाइन द फैक्ट्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स क्लियरली एंड स्ट्रेट अवे, और इसमें फोकस क्या है? आउटलाइन योर आर्ग्यूमेंट्स। इसे आप लोगोस भी कह सकते हैं। उसके बाद है डिवीजन, कि डिवीजन क्या है कि इसमें आपने एक्सप्लेन करना होता है व्हाट इज टू बी प्रूवन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो इसका फोकस क्या होगा? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव, ये भी लोगोस है। तो उसमें फिर उसने बताया कि रिलीजियस, फिलोसॉफिक और इमिटेटिव नेचर जो है पोइट्री की या आर्ट की। उसके बाद आता है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन ये क्या है? कोई स्टेटमेंट है दैट अफर्म्स और डिनाइज समथिंग। तो इसमें वो यही कहते हैं कि पोइट्री इज इमिटेशन, और ये इमिटेशन क्या है? इट्स ऑफ क्रिएटिव नेचर, कि इट्स नॉट स्लेविश कॉपिंग, जैसे एरिस्टोटल ने कहा था प्लेटो को रिफ्यूट करने के लिए। उसके बाद रेफ्यूटेशन क्या है? कि जिसमें आप जो है अपने अपोनेंट्स की आर्ग्यूमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। तो उसमें उसने ये ब्रेक डाउन किया कि स्टीफन गोसान जो है वो गलत कह रहा है। पोइट्री इज नॉट अ पैक ऑफ लाइज, पोइट्री इज द आइडियल ट्रुथ, इट इंस्पायर्स, इट टीचेस, इट मोटिवेट्स अस। उसके बाद जो है पेरोरेशन या कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप सम अप करते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स को, और ऑडियंस के इमोशंस को अपील करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी उसने फिर यही किया कि इस आर्ग्यूमेंट को सम अप किया और कहा कि गोसान के जितने भी एक्यूजेशंस हैं पोइट्री के खिलाफ वो गलत हैं, और इसलिए उसकी बात मानना भी गलत होगा। Sidney offers a definition of poetry as a poet is the maker and poetry is the art of representation। ये कहते हैं कि वाकई इमिटेटिव है ये, मगर ये इमिटेशन क्या है? वो असल से भी शायद बेहतर है, क्योंकि पोइट जो है वो रियल के साथ भी डील करता है और आइडियल के साथ भी। He classified different categories of poetry and adds that meter is not necessary for poetry। मतलब वो कहते हैं कि पोइट्री के लिए मीटर ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी पोइट्री हो सकती है। और उसने कहा कि पोइट्री इज़ प्रूव टू बी सुपीरियर टू हिस्ट्री एंड फिलोसफी, कि हिस्ट्री क्या है? वो क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है इवेंट्स का, और फिलोसफी भी क्या है? सच की तलाश है। मगर लिटरेचर इन दोनों से बेहतर है कि ये सच के साथ भी डील करता है और फिक्शन के साथ भी, कि आइडियल के साथ भी डील करता है और रियल के साथ भी। He discusses different genres of poetry as pastorals। वो आप जानते हैं कि जहाँ पे रूरल लाइफ या नेचर को दिखाया जाता है। एलेजी ये जो है मॉर्निंग सॉन्ग्स होते हैं। आयम्बिक ये आप जानते हैं आयम्बिक पोइट्री, कि जिसमें मेट्रिकल फुट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मोस्टली 2 सिलेबल्स पर मुश्तमिल होते हैं, कि एक अनस्ट्रेस के बाद आप एक स्ट्रेस सिलेबल यूज़ करते हैं। सैटिरिक आप जानते हैं कि जिसमें तंज किया जाता है। कॉमिक वही जीनियल ह्यूमर जिसमें होता है। लिरिक वो जो म्यूज़िकल या मेलोडियस होती है। और हेरोइक के जिसमें जो है आप नैरेटिव वर्ड्स होती है, कि जो डिग्निफाइड और ड्रामेटिक और फॉर्मल स्टाइल इस्तेमाल करती है टू डिस्क्राइब द डीड्स ऑफ अरिस्टोक्रेटिक वॉरियर्स एंड रूलर्स। सिडनी इंट्रोड्यूस्ड अरिस्टोटेलियनिज्म व्यू, कि उसने एरिस्टोटल का वही व्यू था पोइट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। तो सिडनी ने भी उसी को रिपीट किया और कहा कि ऐसा ही है। Sidney refuted the contemporary charges of the Puritans against poetry and said that poetry is universal। कि Puritans जो पोइट्री को डिसलाइक करते थे, उसने कहा कि पोइट्री जो है उसके अंदर यूनिवर्सल अपील है, और पोइट्री यकीनन जो है सब पे हावी है, कि लिटरेचर जो है वो सबसे स्ट्रांग फॉर्म है एक्सप्रेशन की, और ये सबसे ज़्यादा अपील करती है ह्यूमन माइंड को, इमोशंस को और फीलिंग्स को। The poet speaks of both what is and what should be। ये बात मैं कर रहा हूँ कि पोइट आइडियल के साथ भी डील करता है और रियल के साथ भी। He remarked on tragedy, tragic comedy and drama as well। कि उसने ड्रामा और उसकी जो दो डोमिनेंट फॉर्म्स थी, ट्रेजेडी कॉमेडी और ट्रेजिक कॉमेडी के मुतालिक भी बात की, जो इन दोनों का
एक कॉम्बिनेशन है. His view is it's not rhyming and versing that make it a poet. उसके नज़दीक poet जो है वो है जो अपील करता है आपके सेंस ऑफ मोरालिटी को और वैसे आपको अराउज करता है. तो ये क्या है, रोमांटिक एटीट्यूड है. जैसा लॉन्जाइनस में था वैसा ही आपको सिडनी में नजर आता. He regards the poet as God the creator. वो तो ये कहता है कि शायर क्रिएटर है. तो क्रिएशन जो है वो जाहिर है कि सबसे मुश्किल काम है और वो एक नया काम होता है कि तख्लीक क्या है, वो बजाते खुद जो है खुदाई अमल है. तो शायर भी खुदा है जो कुछ नया आपके सामने पेश करता है. बल्कि वो तो ये कहता है कि द पोइट इज द लीस्ट लॉयर ऑफ ऑल, कि वो तो सबसे कम झूठ बोलता है. क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोलना ही नहीं होता. ही इज नॉट अंडर एनी इल्यूजन. वो तो खुद कहता है कि मैं फिक्शन लिख रहा हूं. सिडनी revitalized poetry and gave it a new life. कि सिडनी का अहम किरदार है कि उसने शायरी को दोबारा जिंदा किया एक तरह से. और उसके बाद यकीनन जो है ब्रिटिश लिटरेचर की हिस्ट्री में शायरी और ड्रामे के बेहतरीन दौर का आगाज हुआ. स्टीफन गोसान in his school of abuse made 4 charges. कि स्टीफन गोसान के ये 4 जो हैं इल्ज़ामात थे या एक्यूजिशंस थे जिनको सिडनी ने एड्रेस किया और हम पूरी डिटेल से ये बात पढ़ चुके हैं. उसने कहा था पोइट्री इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम. फिर उसने कहा था पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाइज. फिर उसने कहा पोइट्री इज़ नर्स ऑफ अब्यूज. और फिर उसने ये भी कहा कि प्लेटो हैड राइटली बैनिश्ड द पोइट्स फ्रॉम हिज आइडियल वर्ड. तो सिडनी ने इन सब आइडियाज़ को जो है बारी बारी रिफ्यूट किया. और प्लेटो के बारे में उसने कहा कि प्लेटो ने जो है पोइट्स को बानिश करने के लिए नहीं कहा था. उसने कहा था वो पोइट्स जिनकी शायरी इन्फीरियर है, जो अपील नहीं करती, जो अराउज नहीं करती, जिसमें कोई एथिक्स या मोरालिटी नज़र नहीं आती. थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली. See you very soon with the next video. Please keep on watching my videos and keep on giving the feedback. Allah Hafiz. Stay safe, stay blessed.